गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लिनिक्स के लिए पूरा रिवाइज करने वाले हैं कि क्लिनिक्स में सारे केस का प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट देखेंगे। वाइवा क्वेश्चंस क्या क्या आंसर आ सकते हैं और कैसे कैसे आंसर करना है वो देखेंगे। और इसमें बेसिकली हम लोग हर्निया, हाइड्रोसील, ब्रेस्ट लम्प, थायराइड, वैरिकोज वेन्स और अल्सर्स का केस देखने वाला है। और अगर और कुछ शॉर्ट केसेस में रह जाता है, एंड में टाइम बचेगा तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हर्निया केस। हर्निया का मतलब केस प्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए एसआरबी अच्छी और वाइवा क्वेश्चन के लिए आर मेजेंड्रॉन अच्छी है। तो मेनली इसमें अब अगर एग्जामिनर प्रेजेंट करने के लिए बोलता है तो हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अ केस ऑफ 48 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रकाश कालभोट, laborer by occupation, resident of Karanja, presented to surgery OPD on whatever date it is, with chief complaints of swelling in left inguinal region since 2 months. Patient was apparently alright 2 months back when he noticed swelling in the left groin region, which was insidious in onset and progressive in nature. The swelling first appeared in groin region while strenuous work. It aggravates on strenuous work, standing, coughing, and is reducible on lying down and was not associated with pain. The patient also gave history of Patient is a known case of asthma since 20 years and has complaints of frequent on and off cough. No history of abdominal pain, trauma. Abdominal pain की हिस्ट्री क्यों देखेंगे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में. नो हिस्ट्री ऑफ नोशिया, वोमिटिंग, abdominal distension, absolute constipation. No history of dysuria, hesitancy, urgency, narrowing of stream, retention of urine. Past history में no similar complaints in past, no previous hospitalization, no history of diabetes mellitus, hypertension, TB. Personal history, diet is mixed, sleep regular, bladder and bowel movement normal, addiction, intake of खर्रा since 20 years. फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन में पिकल मॉडरेटली बिल्ड, conscious, cooperative, well oriented to time, place and person. Pallor, icterus, cyanosis, clubbing, lymphadenopathy absent. Vitals, pulse 78 beats per minute, BP 110/80, temperature afebrile, respiratory rate 17 beats per minute. Local examination, consent of patient taken, examination done in standing position, exposed from xiphoid sternum to mid thigh, privacy of patient is maintained. Inspection, single swelling is seen in right inguinal region extending up to scrotal root. Size is 6 into 7 centimeter approximately. Shape globular, surface smooth, regular, margins well defined. Cough impulse present. Peristalsis over the swelling not visible. Stem over the swelling, skin over the swelling, no scar, engorged veins, pigmentation. Position of pain is not deviated. Inspection done, palpation, temperature normal, tenderness absent. Swelling extending from pubic symphysis to root of scrotum is of 6 into 8 centimeter. Consistency doughy. Swelling is above and medial to pubic tubercle. Reduces completely on lying down. Deep ring occlusion test negative. Impulse seen. Siemens and 3-finger test. Index finger, deep inguinal ring, middle finger, superficial inguinal ring finger और saphenous femoral ring पे रखते हैं हम लोग. और इम्पल्स कहाँ फील होती है वो इसमें अच्छे से लिखा नहीं है, इम्पल्स कहाँ फील हो रही है. फिर उसके बाद में डायग्नोसिस क्या है, लेफ्ट साइडेड रिड्यूसिबल इनकम्प्लीट डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया विथ ओमेंटम एज अ कंटेंट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इंग्वाइनल हर्निया, इनलार्ज लिम्फ नोड, लाइपोमा, फीमोरल हर्निया, स्वास एब्सेस, साफिना वैरिक्स. साफिना वैरिक्स क्या होता है, लॉन्ग सैफिनस वेन की वैरिकोसिटी, स्वेलिंग डिसअपियर कर जाती है लाइंग डाउन पे. फीमोरल हर्निया में क्लोकेट्स लिम्फ नोड देखने के लिए मिलते हैं फीमोरल केनाल में. सर्जरी में ओपन और क्लोज्ड होते हैं. ठीक है, तो अब इसमें मेनली क्या क्या पूछा जाता है. साइट्स ऑफ हर्निया बहुत कॉमन क्वेश्चन है. उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. टाइप्स ऑफ हर्निया, हेजलबैक स्ट्रैंगल, कैसे पता चला एंट्रोसील है कि नहीं. फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड में क्या होता है, स्ट्रैंगुलेटेड में डीडीज रिड्यूसिबल है कि नहीं, एक्सटेंट, ये सब. तो हम अभी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 2-3 केसेस है वो हम एंड में रीड करेंगे.
सबसे पहले इनग्वाइनल कैनाल की एनाटमी। इनग्वाइनल कैनाल जो होता है उसमें उसके पहले इनग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज। एंटीरियरली क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। इमेजिन ही कर रहे हैं हम लोग, तो आगे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस होगा और आर्च फाइबर होंगे इंटरनल ऑब्लिक के। पीछे क्या होगा, एंटीरियर वॉल, ठीक है। पोस्टीरियर पीछे क्या होगा, फेशिया ट्रांसवर्सालिस होगा, कॉन्जॉइंट मसल होगा। आगे क्या होगा, इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस और आर्च फाइबर हो गया इंटरनल ऑब्लिक के। और पीछे क्या हो गया, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। फ्लोर किसने बनाया, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस में, और लेक्यूनर लिगामेंट है। और रूफ किसने बनाया, कॉन्जॉइंट मसल में। इसके बाद में इनग्वाइनल कैनाल, जिसको हम हाउस ऑफ बैसिनी भी बोलते हैं। ये कितना लॉन्ग होता है, 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डीप रिंग से सुपरफिशियल रिंग तक एक्सटेंड करता है। डीप रिंग की लोकेशन क्या होती है, सुपरफिशियल रिंग की लोकेशन क्या होती है। डीप रिंग जो होती है अपना मिड इनग्वाइनल पॉइंट है, वहाँ से 1/2 इंच अबव होता है। और सुपरफिशियल रिंग जो होती है प्यूबिक ट्यूबरकल के जस्ट अबव होती है। प्यूबिक ट्यूबरकल हमको पाल्पेट होता है। और ये जो होता है मिड इनग्वाइनल पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में लाइन जो होती है वो ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट, वहाँ से 1/2 इंच अबव, ठीक है। और सैफिनस ओपनिंग जो रहती है 4 सेंटीमीटर बिलो रहती है और लैटरली रहती है प्यूबिक ट्यूबरकल के। इसके बाद में हमने क्या देखा कि इनग्वाइनल कैनाल 3.75 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में, एक्सटेंड करता है डीप रिंग से सुपरफिशियल रिंग तक। डीप रिंग कहाँ रहती है, जो प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके मिड पॉइंट के 1/2 इंच अबव। और उसके बाद में सैफिनस ओपनिंग जो होती है प्यूबिक ट्यूबरकल के नीचे रहती है 4 सेंटीमीटर और लैटरली, और जो सुपरफिशियल रिंग रहती है प्यूबिक ट्यूबरकल के जस्ट ऊपर रहती है। फिर इसके बाद में जो रहता है इनग्वाइनल कैनाल जो होता है डीप रिंग से सुपरफिशियल रिंग तक एक्सटेंड करता है। डीप रिंग सेमी ओवल रहती है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, सुपरफिशियल रिंग ट्रायंगुलर रहती है। इसके बाद में कंटेंट्स क्या रहता है इनग्वाइनल कैनाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियो इनग्वाइनल लिगामेंट रहती है और स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल में और राउंड लिगामेंट फीमेल में। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट में आते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी ऑफ वास, आर्टरी टू क्रेमास्टर, वेन्स में पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन, लिम्फेटिक्स ऑफ टेस्टी, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व, वास डिफरेंस। ये सब हो गए इनग्वाइनल कैनाल के कंटेंट। हर्निया की टाइप में एक तो वजाइनल होता है, फ्यूनिकुलर होता है, बिब्नोसील होता है। वजाइनल क्या होता है, स्क्रोटम बेस तक डिसेंड करता है, टेस्टीज फील नहीं होती सेपरेटली, कंप्लीट हर्निया बोलते हैं जिसको। फ्यूनिकुलर जो होता है इसमें टेस्टीज सेपरेटली फील होती है, प्रोसेसिस वजाइनलिस क्लोज हो जाता है एपिडेमिस के लिए। और बिब्नोसील जो होता है इनग्वाइनल स्वेलिंग होती है सिर्फ, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं हर्निया को प्रिवेंट कौन से मैकेनिज्म करते हैं जब एब्डोमिनल प्रेशर राइज होता है। एक तो शटर मैकेनिज्म होता है, दूसरा फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म, बॉल वॉल्व मैकेनिज्म, स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म। शटर मैकेनिज्म, फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म, बॉल वॉल्व मैकेनिज्म और स्लिट मैकेनिज्म। शटर मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब इंटरनल ऑब्लिक के आर्च फाइबर्स जो रहते हैं वो प्रिवेंट करते हैं। बॉल वॉल्व में ऑब्लिक कैनाल होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के अप्रॉक्सीमेशन की वजह से। फ्लैप वॉल में, बॉल वॉल में क्रेमास्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है। और स्लिट वॉल में क्रूरा जो होता है सुपरफिशियल रिंग का वो। हेज़लबैक्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हेज़लबैक्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज जो है हम लोग यहाँ देख पाएंगे। ये तो हेज़लबैक्स ट्रायंगल जो होता है इसके मीडियली होता है रेक्टस एब्डोमिनस, लैटरली होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। मीडियली हो गया रेक्टस एब्डोमिनस, जैसे कि हमने ये डायग्राम में देखा, रेक्टस एब्डोमिनस हो गया। और उसके बाद में लैटरली हो गया ये अपना इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इसके बाद में बिलो जो होता है इनग्वाइनल लिगामेंट और फ्लोर फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ये जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से फ्लोर बन गया और इनग्वाइनल लिगामेंट से ये बन गया इसका बेस। मीडियली रेक्टस एब्डोमिनस इमेजिन कर रहे हैं, लैटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, रेक्टस एब्डोमिनस, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इनग्वाइनल लिगामेंट और फ्लोर फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनता है अपना हेज़लबैक्स ट्रायंगल का। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कवरिंग्स क्या रहती है इनग्वाइनल हर्निया की। इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया। डायरेक्ट हर्निया मतलब नीचे तक एक्सटेंड कर रहा है और इनडायरेक्ट हर्निया मतलब सिर्फ इनडायरेक्ट रिंग तक है, डीप रिंग तक है, सुपरफिशियल रिंग तक नहीं है। तो जो इनडायरेक्ट हर्निया रहता है उसकी कवरिंग में होता है पेरिटोनियम, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, क्रेमास्ट्रिक फेशिया, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक मतलब यही फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमास्ट्रिक फेशिया, स्क्रोटम। और इसमें क्या रहता है ट्रांसवर्सालिस फेशिया और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया डायरेक्ट हर्निया में। एनाटमी ऑफ हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है।
सैक रहता है, कंटेंट रहता है, कवरिंग रहता है, माउथ। सैक में क्या क्या रहता है? सैक के 4 पार्ट्स रहते हैं, माउथ, नेक, बॉडी, फंडस। और डायरेक्ट हर्निया में नेक नहीं रहता, और सैकलेस हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया रहता है। हर्निया की कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस में एक तो हो सकता है इरिड्यूसिबिलिटी, दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्शन, और तीसरा होता है स्ट्रैंगुलेशन। तो इरिड्यूसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है? एक तो क्राउडिंग ऑफ कंटेंट्स की वजह से हो सकता है, एडिशन बिटवीन सैक एंड कंटेंट्स की वजह से, हमने पार्ट्स देखे थे, एडिशन बिटवीन सैक एंड कंटेंट्स की वजह से, क्राउडिंग ऑफ कंटेंट्स की वजह से, एडिशन बिटवीन कंटेंट्स की वजह से, एडिशन बिटवीन सैक्स की वजह से हो सकता है। 4 रीजन: क्राउडिंग बिटवीन कंटेंट्स, एडिशन बिटवीन सैक्स एंड कंटेंट्स, एडिशन बिटवीन कंटेंट्स और एडिशन बिटवीन सैक्स की वजह से। और ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन के 4 फीचर्स रहते हैं। एक तो एब्डोमिनल पेन होता है, एकदम कोली की, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ऑब्स्टिपेशन। ऑब्स्टिपेशन क्या रहता है? फ्लैटस और फीसेस पास नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने नेगेटिव हिस्ट्री में ये सब पूछा था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वोमिटिंग, कोली की पेन, ऑब्स्टिपेशन। उसके बाद में स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है? अगर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो गया, इरिड्यूसिबिलिटी भी हो गया, और उसकी वजह से क्या हो गया? ब्लड सप्लाई का अरेस्ट हो गया, तो तब हम बोलेंगे स्ट्रैंगुलेशन में कोली की एब्डोमिनल पेन तो होगा, और गैंग्रीनस हो गया अगर, तो पेन डिसअपियर कर जाएगा और सडनली इंक्रीज होगा साइज ऑफ हर्निया का, और टेंस, टेंडर और रेड हो जाएगा। वो स्ट्रैंगुलेशन में टेंस, टेंडर, रेड हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑब्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा? गैंग्रीन हो जाएगा, अरेस्ट ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होता है। गैंग्रीन हो जाएगा और उसके बाद में टेंस, टेंडर और रेड हो जाएगा वो। इसके बाद में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? टीबी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो सकता है। वेट लिफ्टिंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। और डायरेक्ट हर्निया जो होता है फीमेल्स और चिल्ड्रन में कभी नहीं होता, ठीक है। यंग एज में हो रहा है इनडायरेक्ट, और ओल्ड एज में हो रहा है डायरेक्ट। डिफरेंस भी मैं बताऊंगी अभी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो वाइवा में पूछ सकते हैं, मैलगैग्नीज बल्ज क्या रहता है? ये बायलैटरल बल्ज होता है, स्ट्रेनिंग पे प्रोड्यूस होता है जब हम लेग रेस करवाते हैं इनग्वाइनल रीजन में। मेनली डायरेक्ट हर्निया में प्रेजेंट होता है और इंडिकेट करता है पुअर मसल टोन को, और हर्नियोप्लास्टी ट्रीटमेंट होता है इसका। टैक्सिस क्या होता है? टैक्सिस नहीं, क्या एक मेथड होता है इनग्वाइनल हर्निया को रिड्यूस करने के लिए। हम पेशेंट की नीज जो होते हैं उसको फ्लेक्स करवाते हैं, एडक्ट करते हैं और इंटरनली रोटेट करते हैं। उसकी वजह से एब्डोमिनल मसल रिलैक्स होते हैं और उसकी वजह से जो होता है इनग्वाइनल हर्निया रिड्यूस होता है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि बोवेल इंजरी हो सकती है, सैक रप्चर हो सकता है। कफ इम्पल्स तो हमको पता ही है। फिर रिड्यूसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी में ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? रिड्यूसिबिलिटी में हमको क्या लगता है कि अपोजिट फोर्स लगता है फिर से स्वेलिंग को रीअपियर करवाने के लिए, अगर हमने एक बार रिड्यूस कर दिया तो। और कंप्रेसिबिलिटी में अपोजिंग फोर्स नहीं लगता रीअपियर करवाने के लिए, कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होती, और रिड्यूसिबिलिटी में कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूसिबल स्वेलिंग की एग्जाम्पल है हर्निया, और कंप्रेसिबल स्वेलिंग की एग्जाम्पल है हेमांजियोमा, लिम्फेंजियोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा। अब ये तीनों टेस्ट हम कैसे करते हैं? एक तो जीमेंस टेस्ट तो हमको पता है, जो अपनी सुपरफिशियल रिंग पे डायरेक्ट हर्निया होता है, डीप रिंग पे अगर इम्पल्स मिल रहा है तो इनडायरेक्ट हर्निया, और साफिनस ओपनिंग पे मिल रहा है तो फीमोरल हर्निया। इंडेक्स फिंगर को डीप रिंग पे रखेंगे और डीप रिंग पे इम्पल्स मिल रहा है तो इनडायरेक्ट हर्निया, और अगर मिडिल फिंगर में इम्पल्स मिल रहा है तो डायरेक्ट हर्निया, और उसके बाद में रिंग फिंगर पे मिल रहा है तो साफिनस ओपनिंग पे मतलब फीमोरल हर्निया। और डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? कंटेंट्स को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद में पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में और ऑक्लूड करते हैं डीप रिंग को थंब के साथ में, और पेशेंट को कफ करने के लिए बोलते हैं। अगर कफ करने के बाद में स्वेलिंग अपीयर कर रही है तो डायरेक्ट है, अगर अपीयर नहीं कर रही तो इनडायरेक्ट। रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? रिंग फिंगर को उधर इन्वेजिनेट करते हैं, स्वेलिंग रिड्यूसिबल होनी चाहिए, रिड्यूस करते हैं स्वेलिंग को, इन्वेजिनेट करते हैं लिटिल फिंगर के साथ में सुपरफिशियल रिंग में, रोटेट करते हैं लिटिल फिंगर को मीडियली ताकि पल्प फेस करता है मीडियली, और डायरेक्शन ऑफ एंट्री और साइड ऑफ इम्पल्स को देखते हैं। अगर पल्प पे इम्पल्स फील हो रहा है तो डायरेक्ट है, और अगर टिप पे फील हो रहा है तो इनडायरेक्ट है। फिर हमने देखा था डायग्नोसिस में हमने कैसे लिखा था, राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है, पहले वो मेंशन करना है, फिर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब सिर्फ डीप रिंग तक है, डायरेक्ट मतलब सुपरफिशियल रिंग तक आ गया है। फिर उसके बाद में इनग्वाइनल है कि फीमोरल है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, अनकॉम्प्लिकेटेड है कि कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन पे हमने क्या क्या देखा था? स्ट्रैंगुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और रिड्यूसिबिलिटी।
और कंटेंट्स बताना है एंट्रोसीले के ओमेंटोसीले। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर इनग्वाइनल स्वेलिंग है तो इनलार्ज लिम्फ नोड्स, अनडिसेंडेड टेस्टीज, लाइपोमा, साफिना वैरिक्स, ये सब हो सकता है। क्या क्या? अनडिसेंडेड टेस्टीज, इनलार्ज लिम्फ नोड्स, लाइपोमा, साफिना वैरिक्स। फिर इसके बाद में इनग्वाइनोस्क्रोटल है तो हाइड्रोसील हो सकता है, वैरियोसील हो सकता है। और हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी। रिड्यूसिबिलिटी वाला हर्निया था और कंप्रेसिबिलिटी वाला हिमांजियोमा, बाकी सब था लिम्फेंजियोमा वगैरह। और फीमोरल स्वेलिंग है तो इनग्वाइनल हर्निया, साफिना वैरिक्स, क्लोकेट्स नोड, ये सब। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग हीमोग्लोबिन, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम देखेंगे, ब्लड यूरिया, शुगर, ये सब देखेंगे। यूएसटी करेंगे ओल्ड एज में पता करने के लिए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है क्या। पोस्ट वॉइडल रेसिडियल यूरिन देखेंगे, अगर ग्रेटर देन 100 ml तो सिग्निफिकेंट होता है। फिर ट्रीटमेंट में हम लोगों ने देखा था ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट से क्या होता है, हर्निया रिड्यूस हो रहा था, हम उसको क्या कर रहे थे, इंटरनल रोटेट कर रहे थे और नीज को फ्लेक्स कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, मसल टोन, पुअर मसल टोन को इंडिकेट कर रहा था और हर्नियोप्लास्टी करना था उनके अंदर। फिर एनाटमी तो हम देख ही चुके हैं। कंटेंट क्या क्या रहता है हर्निया की एनाटमी में, सैक होता है, कंटेंट्स होते हैं, कवरिंग होती है। सैक, कंटेंट, कवरिंग। सैक में क्या क्या होता है, माउथ, नेक, बॉडी, फंडस। सर्जरीज क्या क्या करते हैं हम लोग हर्निया के लिए, हर्नियोटोमी करते हैं और हर्नियोग्राफी करते हैं। हर्नियोटोमी में क्या करते हैं, सैक को सेपरेट करते हैं कॉर्ड के स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है। डायरेक्ट सैक और इनडायरेक्ट सैक हो सकता है। फिर उसके बाद में रिड्यूस करते हैं कंटेंट को और ट्रांसफिक्सेशन और लाइगेशन करते हैं, सैक का एक्सरसाइज करते हैं, सैक रिडंडेंट सैक को। ट्रांसफिक्सेशन और लाइगेशन ऑफ सैक करते हैं। ट्रांसफिक्सेशन में मतलब रोटेट करते हैं और लाइगेट करते हैं सैक को। इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया के लिए करते हैं। डायरेक्ट के लिए हम लोग सैक को एब्डोमेन में डाल देते हैं विदाउट ओपनिंग। फिर हर्नियोग्राफी में क्या करते हैं, पहले हर्नियोटोमी करते हैं। हर्नियोटोमी मतलब क्या करेंगे, सैक को कॉर्ड स्ट्रक्चर के साथ से सेपरेट करेंगे, फिर उसको रिड्यूस करेंगे, कैसे, रोटेट करके, और फिर लाइगेट कर देंगे और एक्सरसाइज कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, नैरो करेंगे डीप रिंग को प्रोलीन यूज़ करके, और उसके बाद में कॉन्जॉइंट टेंडन जो है उसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ में 1 पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल यूज़ करके, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन क्या रहता है, सूचर मटेरियल होता है। वाइक्रिल या फिर प्रोलीन। वाइक्रिल मतलब पॉलीप्रोपाइलिन, वाइक्रिन मतलब पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, और प्रोलीन मतलब पॉलीप्रोपाइलिन। सिल्क, कैटगट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हर्नियोग्राफी। हर्नियोप्लास्टी क्या होता है, हर्नियोप्लास्टी तब करते हैं, डायरेक्ट हर्निया में करते हैं जब एब्डोमिनल मसल वीक हो गई है तो अप्रॉक्सीमेशन कर ही नहीं सकते, तो इसमें आता है बेसिनीज, ठीक है। मॉडिफाइड बेसिनीज और ओरिजिनल बेसिनीज। मॉडिफाइड बेसिनीज में क्या करते हैं अपन, फेशियल ट्रांसवर्सालिस को ओपन नहीं करते हैं, सीधा प्रोलीन मैश के साथ अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, किसका, कॉन्जॉइंट टेंडन का इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ में। फिर हर्नियोग्राफी में आता है यही बेसिनीज। हर्नियोप्लास्टी कब करते हैं अपन, जब वीक हो जाती है एब्डोमिनल मसल्स, तो उसके अंदर आता है लिकिंस्टिन्स और गिलबर्ट्स प्लग। और हर्नियोग्राफी में आता है अपना बैसिनीज और मॉडिफाइड बैसिनीज। हर्नियोग्राफी में अपन क्या करते हैं, हर्नियोटोमी करते हैं, फिर उसके बाद में नैरो करते हैं डीप रिंग को प्रोलीन यूज़ करके, और उसके बाद में वाइक्रिल यूज़ करके या फिर पॉलीप्रोपाइलिन, वही प्रोलीन यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन को इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ में। बस ये एक लाइन याद रखने की, कॉन्जॉइंट टेंडन को इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ में अप्रॉक्सीमेट कर देता है। और एक शोल्डाइज भी रहता है, ये एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पोस्टीरियर वॉल को। इसमें हम डबल ब्रेस्टिंग करते हैं फेशियल ट्रांसवर्सालिस का, जैसे कि हम लोग ये इमेज में देख पा रहे हैं। एक हैमिल्टन बैलीज ऑपरेशन भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इतना प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक और करते हैं ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर। ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव, इमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशंस। इंट्रा ऑपरेटिव में वेसल्स जो है, जैसे हमने देखा था कि हेज़लबैक्स ट्रायंगल के लैटरल बाउंड्री में क्या था, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, उसका इंजुरी हो सकता है। फिर उसके बाद में बोवेल ब्लैडर को इंजुरी हो सकता है। इलियो इनग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो कि रेक्टस शीथ का कंटेंट था, उस इनग्वाइनल कैनाल का कंटेंट था, उसको इंजुरी हो सकता है। कॉर्ड स्ट्रक्चर को इंजुरी हो सकता है। इमीडिएट पोस्टमार्टम में यूरिन रिटेंशन, हेमाटोमा, इन्फेक्शन, ये सब। और लेट में रिकरेंस हो सकता है। और ट्रांस एब्डोमिनल पेरिटोनियल रिपेयर और टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर, ये भी हम करते हैं। मेनली टैप में क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी को एंटर करते हैं, ईजी होता है बिगिनर्स के लिए। और डिसएडवांटेज होता है कि विसरल इंजुरीज ज़्यादा होती है टैप से। और
TEP टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर में क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी को एंटर नहीं करते, एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस बनाते हैं बलून को यूज़ करके और डायरेक्ट इन्फ्लेशन यूज़ करके, और फिर प्री पेरिटोनियल स्पेस ऑफ लोअर एब्डोमेन में जाते हैं। ईजी रिकवरी होती है। फीमोरल हर्निया की सर्जरी में बस नाम याद रखना है, लोथियंसन्स इनग्वाइनल अप्रोच होता है। फिर इसके बाद में स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया अगर हो गया, रेड एकदम वो रेड हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ रहा है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और गैंग्रीन बन गया, तो क्या करेंगे, डिले नहीं करना चाहिए ऑपरेशन के लिए, रिससिटेशन करेंगे, नेजल ऑक्सीजन, IV फ्लूइड्स देंगे। टैक्सेस को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेंट करना है पोविडोन आयोडीन से ज़ीफी-स्टर्नम से मिड थाइड तक। फिर उसके बाद में अगर बोवेल वाइबल नहीं है तो वार्म पैड रखना है बोवेल के अंदर, 100% ऑक्सीजन देना है नेजली, वेट करना है 10 मिनट्स के लिए। अगर वाइबल है तो एब्डोमेन में रख देना, और वाइबल नहीं है तो फिर मिड लाइन इंसिजन के थ्रू निकाल लेना है बाहर। जो अनफिट होते हैं रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस के लिए, उनको इमरजेंसी में करते हैं पॉल मिक्यूलिक्स ऑपरेशन या फिर हार्ट्समैन ऑपरेशन, कोलन को एक्सरसाइज कर लेते हैं कोलोस्टोमी करके, ठीक है। और इसके स्टेप्स क्या रहते हैं, इनग्वाइनो स्क्रोटल इंसिजन देते हैं, सैक को सेपरेट करने के पहले हम लोग फंडस को खोलते हैं सैक का और रिलीज़ करते हैं टॉक्सिक कंटेंट। फिर उसके बाद में टॉक्सिक फ्लूइड्स को एब्डोमेन में पुश कर देंगे तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, उसको अवॉइड करना है। कंस्ट्रिक्शन को यूजुअली 50% केसेस में देखने के लिए मिलता है डीप रिंग पे और 50% में सुपरफिशियल रिंग पे। फिर बोवेल वायबिलिटी को देखना है, बोवेल को होल्ड करना है कंस्ट्रिक्शन को रिलीज़ करने के पहले। नॉर्मल बोवेल पिंकिश रेड रहती है, पेरिस्टालसिस दिखती है, ग्लिसनिंग होती है, ऐसे केसेस में बोवेल को अंदर पुश कर देना और हर्नियोग्राफी करना है। और अगर बोवेल विजिबल नहीं है, गैंग्रीनस लस्ट्रस है, तो फिर ये करना है अपने को, इमरजेंसी पॉल मिक्यूलिक्स ऑपरेशन करना है, गैंग्रीनस लूप को एक्सरसाइज कर देना और फिर कोलोस्टोमी करना है। ये हो गया अपना स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं नायस क्लासिफिकेशन क्या रहता है। अगर इनडायरेक्ट हर्निया है, टाइप 1 टाइप 2 में इनडायरेक्ट हर्निया है, टाइप 3 में क्या हो गया, पोस्टीरियर वॉल डिफेक्ट हो गया, और टाइप 4 मतलब रिकर। नायस क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स रहते हैं। टाइप 1 मतलब इनडायरेक्ट हर्निया और नॉर्मल डीप रिंग है, और टाइप 2 में क्या है, इनडायरेक्ट हर्निया है, डायलेटेड डीप रिंग है, ठीक है। उसके बाद में नायस टाइप 1 इनडायरेक्ट हर्निया, नॉर्मल डीप रिंग, नायस टाइप 2 इनडायरेक्ट हर्निया, डायलेटेड डीप रिंग, और टाइप 3 में क्या होता है, पोस्टीरियर वॉल का डिफेक्ट है, डायरेक्ट हो सकता है पैंटलून फीमोरल, और टाइप 4 में रिकरेंट। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये सैकलेस हर्निया का होता है। फिर इसके बाद में गिलबर्ट क्लासिफिकेशन में 7 टाइप रहते हैं। अगर स्मॉल है इनडायरेक्ट है टाइप 1, मीडियम है इनडायरेक्ट है टाइप 2, लार्ज है इनडायरेक्ट है टाइप 3। फिर उसके बाद में टाइप 4 एंटायर फ्लोर को इन्वॉल्व कर लिया, डायरेक्ट है। टाइप 5 डाइवर्टिकुलर डायरेक्ट, टाइप 6 कंबाइंड पैंटलून, और टाइप 7 फीमोरल हर्निया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डायरेक्ट वाला ओल्डर में होता है, इनडायरेक्ट वाला यंग में होता है, ठीक है। फिर हिस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्ट वाला रिड्यूस हो जाता है लाइंग डाउन पे, और इनडायरेक्ट वाला मैनिपुलेशन पे रिड्यूस होता है। फिर डायरेक्ट वाला मोस्टली बायलैटरल होता है, इनडायरेक्ट वाला मोस्टली यूनिलैटरल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। डायरेक्ट वाला कभी फीमेल में नहीं होता है। डायरेक्ट के 4 पॉइंट्स याद कर ले, ओल्डर में होता है, फीमेल में कभी नहीं होता, वो वाला यंगर में होता है, फीमेल में भी हो सकता है इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद में डायरेक्ट वाला जो होता है लाइंग डाउन पर रिड्यूस कर जाता है, इनडायरेक्ट वाला नहीं करता। फिर डायरेक्ट वाला मोस्टली बायलैटरल होता है और इनडायरेक्ट वाला यूनिलैटरल होता है स्टार्ट पे। फिर उसके बाद में मैलगैग्नीज बल्ज देखने के लिए मिलता है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पैल्पेशन में डीप रिंग ऑक्लूजन करेंगे तो स्वेलिंग अपीयर करती है तो डायरेक्ट, और अगर स्वेलिंग अपीयर नहीं करती है तो फिर इनडायरेक्ट। डीप रिंग ऑक्लूड कैसे करते हैं हम लोग, थंब के साथ ऑक्लूड करते हैं पहले स्वेलिंग को रिड्यूस करने का। फिर फिंगर इन्वाजिनेशन में हम क्या करते हैं, डीप रिंग के पास में फिंगर इन्वाजिनेट करते हैं। अगर पल्प पे फील हो रहा है तो डायरेक्ट है, और अगर टिप पे फील हो रहा है तो इनडायरेक्ट है। डीप रिंग ऑक्लूड करेंगे, अगर फिर से स्वेलिंग अपीयर कर जा रही है तो डायरेक्ट है, और नहीं अपीयर कर रही है तो इनडायरेक्ट है। और अगर पल्प पे फील हो रहा है तो उसके बाद में डायरेक्ट है, और अगर टिप पे फील हो रहा है तो इनडायरेक्ट है। जीमन्स टेक्निक में सुपरफिशियल रिंग पे अगर फील हो रहा है तो डायरेक्ट है, और डीप रिंग पे फील हो रहा है तो इनडायरेक्ट है। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रैंगुलेशन डायरेक्ट में नहीं होता है, नीचे तक आ गया, इनडायरेक्ट में होता है। फिर उसके बाद में ये मीडियली होता है डायरेक्ट वाला कॉर्ड से, और लैटरली होता है इनडायरेक्ट वाला। मीडियली जो होता है वो डायरेक्ट वाला होता है, लैटरली जो होता है वो इनडायरेक्ट वाला होता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को, ठीक है।
ये हेजलबैक ट्रायंगल के थ्रू आता है डायरेक्ट वाला, और डीप रिंग के थ्रू आता है इनडायरेक्ट वाला। डायरेक्ट में हम लोग हर्नियोप्लास्टी करते हैं और इनडायरेक्ट में हर्नियोग्राफी करते हैं। हर्नियोप्लास्टी में शोल्डाइस था, नहीं बैसिनीस था, मॉडिफाइड बैसिनीस और शोल्डाइस था। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, पॉलीप्रोपाइलिन के साथ में कॉन्जॉइंट इनग्वाइनल लिगामेंट को कॉन्जॉइंट टेंडन के साथ में वो कर दे रहे थे, अप्रॉक्सीमेट कर दे रहे थे। और हर्नियोग्राफी में हम लोग हर्नियोटोमी करने के बाद में वही गिलबर्ट्स और ये लिचनस्टन्स, और वो हर्नियोग्राफी में है बैसिनीस, मॉडिफाइज बैसिनीस जो इनडायरेक्ट में करते हैं। और हर्नियोप्लास्टी में वीकनेस हो गया एब्डोमिनल वॉल का, तो अपन शोल्डाइस टेक्निक यूज़ करते हैं मेनली। नेक्स्ट हम लोग ब्रेस्ट देखने वाले। हेलो गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट केस स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा हर्निया ऑलमोस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट केस है ब्रेस्ट लम्प। तो ब्रेस्ट लम्प में मेनली जो रहते हैं, स्टार्ट करते हैं केस प्रेजेंटेशन। अगर जब सर केस प्रेजेंट करने बोलेंगे तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द केस ऑफ मिसेस कमलाबाई Vamal Rathod, a 60-year-old female resident of Jamshedpur and laborer by occupation. She came to surgery OPD on 6/6/24 with chief complaints of lump in right breast since 1 month. Patient was apparently alright 1 month back when she noticed lump in her right breast while applying balm over that area, which was insidious in onset and gradually progressive in nature. Pea-sized earlier and grow to lemon size approximately 7 into 4 centimeter, globular in shape. There is no history of swelling in the other breast anywhere else in the body. History of loss of appetite and weight loss since 1 month is present. There is no history of nipple retraction, discharge, cracks or ulceration. No history of pain, no history of fever, no history of ascites, dyspnea, seizure, vomiting, no history of swelling of upper limb, no history of prior radiation exposure, no history of back pain, bone pain. Past history, no history of diabetes mellitus, hypertension, asthma, malignancy, tuberculosis, no history of hormone replacement therapy, no history of previous lump, breast surgeries, no history of blood transfusion. Menstrual history, age of attainment of menarche is 12 years, cycles were regular, lasting for 5 days, no history of dysmenorrhea. Menstrual history जो रहती है इसके केस में, ब्रेस्ट लम्प के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. Marital history, married since 40 years, non-consanguineous marriage, husband's occupation is laborer, parity index G4P4L4, A0, no number of children 4, all through normal vaginal delivery, breastfed till 1.5 years of age, 3 boys and 1 girl. She underwent tubectomy 20 years ago, 7 years after delivery of youngest child. Family history, no similar complaints in mother, sister or any cancer related death in family. Personal history, mixed diet, loss of appetite, normal sleep, normal bowel and bladder habits, no history of addictions. Examination, she was examined in sitting and semi-recumbent position, hands by the side raised on hips, with hands by the side and raised on hips. Patient is conscious, cooperative and well oriented to time, place and person. Built, moderately built. Vitals, pulse 75 beats per minute, temperature afebrile, respiratory rate 15 breaths per minute, blood pressure 110 by 80 mm Hg, pickle, negative, not present. Lymphadenopathy present, anterior lymph node of axilla. Local examination, examination of breast, consent of patient was taken before examination. Patient was examined in adequately lit room with exposure up to waist. Inspection, breast, right breast is bigger than left, right breast is displaced downwards compared to left, no ingot vessels, no dimpling, puckering or ulceration seen, skin over the breast, pude orange, positive, red in color, fullness noticed in the right upper quadrant, areola, edema not present, engorgement not present, smooth and shiny, color dark brown, nipple both present, normal surface, no discharge, asymmetric nipples.
No cracks present, no wrinkling or fissure seen. Right-sided nipple is situated slightly lower than left. Accessory nipple not present. Discharge not present. Axilla, arms raised, anterior lymph nodes swollen, inflammatory, inframammary fold normal, lump looks prominent, right upper outer quadrant, in right upper outer quadrant. Bending forward, look from side. Both breasts fall equally. Upper limb, supra infraclavicular fossa, opposite side normal. Palpation, left breast normal. No local rise in temperature on right breast. Tenderness absent. Single lump felt around right upper quadrant. It is globular in shape, firm in consistency with irregular margins, 7 into 4 cm. Skin pinchability positive. Trans illumination test negative. Fluctuation negative. Hands on waist. Fixity to breast tissue. Restricted morbidity. Fixity over the skin absent. Axilla anterior, central, posterior, lateral, and apical, infraclavicular. Anterior is swollen, other all are normal. Percussion, second, third, and fourth intercostal space, resonant node, no involvement of internal mammary lymph nodes. Summary: 60-year-old female, Kamlabai Rathore, presented with complaints of lump in right breast from 1 month. Lump was gradually progressive with irregular margins, 7.4 cm in size on examination. Probable diagnosis is breast carcinoma. Differential diagnosis: fibroadenoma, benign breast disease, breast lymphoma, mastitis, duct papilloma, phyloids. इसमें मेनली हमको ड्यूरेशन जो रहता है बिटवीन मेनार्च एंड फर्स्ट फुल टर्म चाइल्ड, जो अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाता है. फिर लोकेशन देखते हैं, सेंट्रल है कि पेरिफेरल है. स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और केस प्रेजेंटेशन देखते हैं तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों केस प्रेजेंटेशन में क्या फॉल्ट था. गुड मॉर्निंग सर, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द केस ऑफ अ 45-year-old female, Aruna Kochram, who is resident of Yavatmal, farmer by occupation, presented to surgery OPD on so and so date with complaints of lump in left breast since 1 year. Patient was apparently alright 1 year back when she noticed lump in left lower quadrant of the breast while bathing, which was insidious in onset, progressive in nature. It was initially 1 into 1 centimeter and progressed to current size of 6 into 4 centimeter. There is a history of sudden increase in size in the last 4 months, oval in shape, no history of swelling in other breast, axilla, anywhere else in the body, no history of nipple retraction, discharge, cracking, ulceration, no history of chest pain, coughing, hemoptysis, no history of pain in abdomen, jaundice, no history of backache, limb pain, no history of fever, headache, loss of consciousness, tuberculosis to loud करने के लिए, no history of swelling of arm, no history of prior radiation exposure, no history of loss of appetite. Past history: no previous history of any similar complaints, not a known case of type 2 diabetes, TB, asthma, no previous history of hospitalization or surgery, no history of any medications in the past. Family history: no history of any breast, ovarian or colorectal cancer in any family member. No significant family history. Obstetric and menstrual history: age of menarche 13 years, cycles were regular, 30 days cycles lasting over 4 to 5 days. No clot or dysmenorrhea. Married life 27 year. Obstetric score L2 P2 P2 L2. First child male born 24 years ago. Second child female born 22 years ago, C-section. Personal history: diet mixed, appetite normal, sleep adequate, bowel and bladder movement regular, no history of addiction. Patient is conscious, cooperative and well oriented to time, place and person, moderately built, pulse 75 beats per minute, temperature afebrile, BP 110/80 mm Hg, respiratory rate 14 cycles, pickle absent, local examination, consent was taken, examined in adequately lit room with exposure up to waist, privacy of patient was maintained, examined in sitting with hands on sides raised and on hip. Inspection: comparative inspection.
Both breasts are equal in size. Left breast is slightly lower than the right breast. No engorged veins, no dimpling, ulceration, skin over the breast normal, no scar, areola, no edema, engorgement, smooth and shiny, color dark brown, nipple, both nipple present, nipple lower, left nipple lower than right, normal surface, no discharge, retraction, no cracks, fissures. Palpation, temperature, no local rise of temperature, tenderness absent, lump, single lump in left inner quadrant of breast, size 6 into 4, shape globular, smooth surface, firm in consistency, irregular margins. Fixity, lump is mobile, adhering to skin structure, muscle, chest wall, lymph nodes, axillary, anterior, posterior, central, lateral, apical, normal, opposite breast and axilla normal, not associated with cyclic pain. These are the important questions on Viva questions. सबसे पहले importance of age. फाइब्रोएडिनोमा जो होता है 20 ईयर्स से 35 ईयर्स तक हो सकता है. कार्सिनोमा 40 ईयर्स से ज़्यादा की फीमेल में ही होता है. और पेनफुल ब्रेस्ट के कॉजेज़ क्या रहते हैं? मेस्टैल्जिया, फाइब्रोएडिनोसिस हो सकता है, ANDI, मास्टाइटिस, एब्सेस. ब्रेस्ट लम्प के कॉजेज़ क्या रहते हैं? लम्प के फाइब्रोएडिनोमा, कैंसर, फैट नेक्रोसिस, एब्सेस, डक्ट पैपिलोमा, एक्टेशिया. रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं? मेजर एज ज़्यादा है, सेक्स फीमेल, जेनेटिक BRCA1, BRCA2, P53 म्यूटेशन, फैमिलियल हिस्ट्री. ज़्यादा इतना कॉमन नहीं, स्पोरैडिक ज़्यादा कॉमन है. मॉडरेट में अर्ली मेनार्ज, लेट मेनोपॉज, नॉन लैक्टेटिंग, लेट प्रेगनेंसी, ये सब. निपल रिट्रैक्शन के कॉजेज़ में आते हैं डक्ट, एक्टीशिया, ब्रेस्ट एब्सेस. ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लडी निपल डिस्चार्ज के कॉजेज़ होते हैं डक्ट पैपिलोमा, डक्ट कार्सिनोमा. ग्रीन डिस्चार्ज के कॉजेज़ होते हैं ANDI या फिर डक्ट एक्टेशिया. पेजेट्स डिसीज, एक्जेमा या फिर डर्मेटाइटिस. डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रिपल असेसमेंट करते हैं. क्लिनिकली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, फिर रेडियोलॉजिकल मैमोग्राफी करते हैं. ओल्डर में और यंगर में USG करते हैं. बायोप्सी करते हैं. FNSC या फिर एक्सीशनल. अल्ट्रासाउंड चीप, अवेलेबल, इन्फॉर्मेटिव, नॉन इन्वेसिव होता है. डिफरेंशिएट कर सकता है सिस्ट को सॉलिड से. पेशेंट जो 35 ईयर्स से कम है उनके अंदर अल्ट्रासाउंड करते हैं. सिस्टिक के लिए FNSC करेंगे, देखेंगे ब्लडी है, रेसिडुअल मास है, रिकरेंस रैपिड है, पॉजिटिव साइटोलॉजी के. अगर सॉलिड है तो इन बायोप्सी करेंगे. एक्सीशनल, ट्रू कट, फ्रोजन सेक्शन. मेमोग्राफी माइक्रो कैल्सिफिकेशन या फिर इरेगुलर कैल्सिफिकेशन है क्या, वो देखने के लिए मिलेगा. मैस्टेक्टोमी के कॉम्प्लिकेशंस तो हमको पता है. कॉजेज़ क्या है? गायनेकोमैस्टिया के, फाइब्रोएडिनोसिस, ANDI के कॉजेज़, पैथोलॉजी पूछ सकते हैं. ब्रेस्ट लंप में अप्रोच कैसे करेंगे? ट्रिपल असेसमेंट करेंगे. उसके बाद में अगर लेस देन 35 ईयर्स अल्ट्रासाउंड करेंगे. सिस्टिक है FNSC करेंगे. पॉजिटिव है तो एक्सीशनल बायोप्सी, नेगेटिव है तो FNSC डायग्नोस्टिक है, थेरेप्यूटिक. मेमोग्राफी नेगेटिव है तो FNSC. डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? लार्ज यूनिलैटरल ब्रेस्ट लंप के, फाइब्रोएडिनोमा, फाइलोइड्स ट्यूमर. निपल डिस्चार्ज मेनली पैथोलॉजिकल कॉजेस रहता है. गैलेक्टोसील, फाइब्रोएडिनोसिस, डक्ट पैपिलोमा, डक्ट कार्सिनोमा, डक्ट एक्टेशिया, ये सब. अगर ब्रेस्ट लम्प का केस है तो पेशेंट 4 ही कंप्लेन के साथ में आएगा. एक तो लम्प है, पेनफुल है या पेनलेस है, डिस्चार्ज हो रहा है निप्पल से, फिर रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल है. रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल के कॉजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. इसके बाद में पेनफुल कंडीशंस क्या होती है ब्रेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट. मेस्टाइटिस हो गया, ब्रेस्ट एब्सेस, फाइब्रोएडिनोसिस, ANDI जिसको बोलते हैं. फिर उसके बाद में रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल किस में होता है? रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल जो होता है मेनली कार्सिनोमा ब्रेस्ट, मेमोरी डक्ट एक्टेशिया और पेरीडक्टल मास्टाइटिस. ठीक है. फिर उसके बाद में डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज होता है डक्ट पैपिलोमा में, पस वाला ब्रेस्ट एब्सेस. फिर उसके बाद में ग्रीनिश डिस्चार्ज, फाइब्रोएडिनोसिस, डक्ट एक्टेशिया. निप्पल रिट्रैक्शन ऐसे देखने के लिए मिलता है. फिर इसके बाद में आ जाते हैं अदर हिस्ट्री, बोन पेन, जॉन्डिस, ब्रेथलेसनेस वगैरह की देखेंगे. मेटास्टासिस हुआ है कि नहीं उसके लिए हम लोग देखते हैं बोन पेन, जॉन्डिस, ब्रेथलेसनेस, कफ पे हेमोप्टाइसिस. हमने अभी नेगेटिव हिस्ट्री में देखा था, जॉन्डिस वगैरह पूछा था. फिर फीवर, मास्टाइटिस है कि नहीं उसके लिए. फिर कई और स्वेलिंग है क्या, लॉस ऑफ वेट, कैंसर के लिए. ट्रॉमा रूल आउट करने के लिए हेमाटोमा या फिर ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस. मेजर इलनेस है क्या, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब. वेट लॉस ब्रेस्ट डिसीज में मेनली कार्सिनोमा ब्रेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस ब्रेस्ट में होता है. ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ब्रेस्ट का वो रिकर कर सकता है. फैक्टर्स जो प्रीडिस्पोज कर रहे थे हमने देखा था मेजर और माइनर. माइनर में था अर्ली मेनार्ज, लेट मेनोपॉज, लेट चाइल्ड बर्थ, एब्सेंट ब्रेस्ट फीडिंग, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. मेजर में था फैमिली हिस्ट्री, स्पोरैडिक, ये सब.
फैमिली हिस्ट्री किसकी, ये पढ़ा था अपन ने, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन ट्यूमर, यूट्राइन ट्यूमर। एग्जामिनेशन में एक तो आर्म रेस करके, फिर उसके बाद में आर्म अबाउ हेड, आर्म एक तो अबाउ हेड, दूसरा साइड ऑफ द बॉडी, और हिप्स पे अल्टरनेटली बिठा के, और फिर लाइंग डाउन पोजीशन में और लीनिंग फॉरवर्ड में, पांचों पोजीशन में। एक तो आर्म अबाउ, दूसरा आर्म बाय साइड, फिर हिप्स पे, फिर लीनिंग डाउन पे, लीनिंग फॉरवर्ड पे, और लाइंग डाउन पे। इंस्पेक्शन में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले ब्रेस्ट की पोजीशन कंपेयर करेंगे राइट और लेफ्ट की, साइज़ देखेंगे, फिर शेप देखेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद में कोई मास है क्या वो देखेंगे, फिर उसके बाद में स्किन में डायलेटेड वेन्स, डिम्पलिंग, पकरिंग, रिट्रैक्शन, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, नोड्यूल्स, अल्सरेशन, फंगेशन है क्या। पहले ब्रेस्ट देख लिया, फिर उसके बाद में स्किन देखेंगे, स्किन में प्यूडी ऑरेंज है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर डिम्पलिंग, पकरिंग, रिट्रैक्शन है क्या, रिट्रैक्शन हो गया तो अपने दिमाग में कार्सिनोमा ब्रेस्ट आएगा। डायलेटेड वेन्स है क्या, फिर निप्पल देखेंगे, निप्पल में क्या है, पोजीशन नंबर कितना है, साइज एंड शेप कैसा है, डिस्चार्ज कैसे। तो सबसे पहले ब्रेस्ट देख लिया, ब्रेस्ट में हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, पोजीशन कंपेयर करेंगे, राइट या लेफ्ट, कोई लोअर है क्या। फिर उसके बाद में साइज़ देखेंगे, दोनों सेम साइज़ के है क्या। फिर उसके बाद में कोई मास है क्या, अल्सरेशन है क्या, ये करेंगे। फिर स्किन में प्यूडी ऑरेंज सबसे पहले आएगा दिमाग में, फिर उसके बाद में पकरिंग, डिम्पलिंग, रिट्रैक्शन है क्या, फिर नोड्यूल्स है क्या, डायलेटेड वेन्स है क्या, फिर निप्पल, निप्पल कितने हैं, पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद में नंबर्स, फिर साइज़ और शेप, डिस्चार्ज है क्या निप्पल से, फिर एरियोला, एरियोला का कलर क्या है। फिर उसके बाद में साइज़ और सरफेस, आर्म्स और थोरैक्स में देखेंगे। फिर उसके बाद में एक्जिला, एक्जिला का ये देखेंगे अपन, लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन करेंगे, कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, अपाइकल और लैटरल। फिर उसके बाद में सुप्रा क्लाविकुलर फोसा में फुलनेस है क्या। ये सब हम पेशेंट को सिटिंग पोस्चर में आर्म्स बाय साइड रख के देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग पेशेंट के आर्म अबाउ हेड रेस करेंगे और देखेंगे प्यूडी ऑरेंज है क्या, फिक्सिटी है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्सिटी ऊपर रेस करने के बाद। फिर रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल हो रहा है क्या। फिर लीनिंग फॉरवर्ड पे देखेंगे फिक्सिटी है क्या चेस्ट वॉल पे, अगर ब्रेस्ट फॉल कर रहे इक्वली दोनों साइड पे तो फिर फिक्सिटी नहीं है। फिर मेनली कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्स करेंगे पेक्टोरालिस मेजर को और देखेंगे स्वेलिंग प्रोमिनेंट हो रही है कि नहीं हिप पे रख के। फिर उसके बाद में पैल्पेशन, पैल्पेशन जो होगा हम सिमेट्रिकली स्टार्ट करेंगे एरियोला से और आउटवर्ड्स पैल्पेट करेंगे, देखेंगे टेम्परेचर और टेंडरनेस। फिर उसके बाद में स्वेलिंग कितने नंबर है, साइड से, शेप, फिर साइज, मार्जिन, कंसिस्टेंसी, फ्लक्चुएशन जो है सब सिस्टिक स्वेलिंग में देखेंगे। सिस्टिक स्वेलिंग कौन सी होती है, फाइब्रोएडिनोसिस। तो मेनली फाइब्रोएडिनोसिस में क्या होगा, और टेंडरनेस देखेंगे। अब हम तीनों में कंपेयर करेंगे, कार्सिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा और फाइब्रोएडिनोसिस में क्या डिफरेंस है। कार्सिनोमा इजीली फेल्ट होगा फ्लैट ऑफ फिंगर्स के साथ में, फाइब्रोएडिनोमा डिफिकल्टी के साथ में, और फाइब्रोएडिनोसिस जो होगा कोई डिफाइन स्वेलिंग नहीं होगी, सिर्फ लंपीनेस फील होगा। कार्सिनोमा के मार्जिन वेल डिफाइंड हो गए, फाइब्रोएडिनोमा के स्लिपरी एजेस हो गए, और फाइब्रोएडिनोसिस की ये होगी इल डिफाइंड होगी। कंसिस्टेंसी हार्ड होगा कार्सिनोमा, फर्म होगा फाइब्रोएडिनोमा, और रबरी होगा फाइब्रोएडिनोसिस। अनइवन, ग्लोबुलर, मल्टीपल। फिर इसके बाद में फिक्सिटी देखेंगे, स्किन के साथ में है क्या, मोबिलिटी, स्किन के और मसल के साथ में फिक्सिटी हम आगे लीन करवा के देख रहे थे, ठीक है। फिक्सिटी टू चेस्ट वॉल, आगे लीन करवा के स्किन की फिक्सिटी दिख जाएगी अपने को पिंच करके। फिर मोबिलिटी देखेंगे और फिक्सिटी टू मसल देखेंगे, पेक्टोरालिस मेजर। उसके बाद में डिम्पलिंग, अगर कूपर्स लिगामेंट का इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो वो स्किन को इन्वर्ट पुल करेगा, जिसकी वजह से डिम्पलिंग या फिर पकरिंग देखने के लिए मिलेगा। फिक्सिटी, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया स्किन का ट्यूमर के साथ में तो वो मूव नहीं हो सकता, स्किन पिंच नहीं हो सकती। फिर इसके बाद में हम लोगों ने ये देख लिया फिक्सिटी टू स्किन। उसके बाद में इंट्रिंसिक मोबिलिटी कैसे देखेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू के साथ में मूव कर रहा है तो कार्सिनोमा है, और अगर ब्रेस्ट टिश्यू के इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है तो फाइब्रोएडिनोमा है। फिर फिक्सिटी टू मसल, पेक्टोरालिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर, हैंड को हिप पे रखने के लिए बोलेंगे उसको, और लंप को मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स के साथ में, और फिर राइट एंगल पे, और उसको प्रेस करने के लिए बोलेंगे हिप को जितना कर सकती है उतना, और देखेंगे मोबिलिटी है कि नहीं। अगर टोटल रिस्ट्रिक्शन है मोबिलिटी का मसल फाइबर्स के अलॉन्ग तो वो फिक्स्ड है, और बट स्लाइटली मूवमेंट है राइट एंगल पे तो भी पॉसिबल है। सेरेटस एंटीरियर का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर चेस्ट वॉल को फिक्सिटी जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के बाद में फिक्स्ड है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ निप्पल, निप्पल में देखें कि कोई ट्यूमर है क्या, डिस्चार्ज है क्या। अगर रिट्रैक्टेड है तो जेंटली प्रेस करेंगे साइड बाय साइड से और इवर्ट कर देगा रिट्रैक्ट, अगर कंजनाइटल है।
फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में क्या आता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। लेवल 2 में सेंट्रल और लेवल 3 में अपाइकल। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। एंटीरियर वाला पेक्टोरल हो गया, पोस्टीरियर वाला सबस्कैपुलर हो गया, लैटरल वाला ब्रेकियल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में लेवल 1 जो होता है लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर पे अपाइकल, और बिहाइंड पेक्टोरालिस माइनर सेंट्रल। इन्वेस्टिगेशन में रूटीन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्पेसिफिक में ट्रू कट बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी, वेज बायोप्सी, ये सब करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टेजिंग में हमने देखा था एक्सरे करेंगे, यूएसजी करेंगे, मेमोग्राफी करेंगे, उसके अलावा सीटी, स्केलेटल बोन सर्वे देखेंगे ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स के लिए। फिर उसके बाद में हमने ये मेमोग्राफी देख ही लिया था, इतना पूछते नहीं है। ट्रिपल असेसमेंट में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजी में यूएसजी मेमोग्राफी, और पैथोलॉजिकल में एफएनएसी या फिर कोर बायोप्सी। ट्रीटमेंट में मेनली मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी में जो पैटीज रहता है और ऑस्टिन क्लॉस रहता है उसके वो पूछते हैं, स्टेप्स पूछते हैं। फिर मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी सिंपल, और ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी। तो मेनली इंसिडेंस जो होता है अपर आउटर में 60% होता है और लोअर आउटर में 10% होता है। अपर इनर में 10% और लोअर इनर में भी 10% के अराउंड पकड़ लो, बाकी सब 10%, अपर आउटर में 60%। टाइप्स में होता है इन सीटू और इन्वेसिव। इन सीटू में डक्टल और लोबुलर, डक्टल में आता है वही। फिर उसके बाद में इन्वेसिव में आता है एडिनोकार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, म्यूसिनस पैपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। फिर लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू में डिफरेंस मेमोग्राफिक साइंस में नहीं है। डक्टल में हमको कैल्सिफिकेशन देखने के लिए मिलता है और डक्टल में पेन डिस्चार्ज होता है और लोबुलर में नहीं होता। फिर ये जो रहता है हिस्टोलॉजी, बस इतना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आते हैं पेजेट्स डिसीज़। पेजेट्स डिसीज़ इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमको इटियोलॉजिकल पता ही है। मेनली ये 3 सिंड्रोम याद रखने हैं, एक तो ली फ्रॉमिनिस सिंड्रोम, काउडेंस डिसीज़, और ये एटैक्सिया टेलेंजेक्टेशिया। ली फ्रॉमिनिस जो होती है P53 की म्यूटेशन की वजह से होता है, और BRCA1, BRCA2, HER2 म्यूटेशन और P53 म्यूटेशन हमको पता ही है। डाइट में अल्कोहल, एंडोक्राइन कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। एक्सोजीनस हार्मोन, अर्ली मेनार्ज, लेट मेनोपॉज और लेट चाइल्ड बर्थ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और एब्सेंट ब्रेस्ट फीडिंग, और स्पोराडिक ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में ब्लूम और रिचार्डसन्स ग्रेडिंग, इसमें नंबर ऑफ माइटोसिस, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म और ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, ये सब देखता है। TNM स्टेजिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें 1, 2, 3, 4 बहुत ईजी है। TIS मतलब इन सीटू, हमको पता ही है। इन सीटू जो होता है इसमें भी 9 में आता है। फिर इसके बाद में आते हैं T1 लेस देन 2 सेंटीमीटर, T2 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा 5 से कम, T3 5 से ज़्यादा, T4 कोई भी साइज़ का बट चेस्ट वॉल या फिर स्किन में एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है। तो इसमें ABCD होता है। अगर सिर्फ चेस्ट वॉल में एक्सटेंशन हुआ है, पेक्टोरालिस मेजर को इंक्लूड नहीं कर रहा है, A। अगर स्किन में हो गया प्यूडी ऑरेंज है, अल्सरेशन हो गया स्किन का, सैटेलाइट स्किन नोड्यूल्स है, B। मतलब सिर्फ चेस्ट वॉल में पेक्टोरालिस मेजर को इन्वॉल्व नहीं किया, A। स्किन में हो गया प्यूडी ऑरेंज है, अल्सरेशन वगैरह है, पकरिंग है, सैटेलाइट स्किन नोड्यूल्स है, B। अगर दोनों स्किन और चेस्ट वॉल में हो गया है और पेक्टोरालिस मेजर को इंक्लूड नहीं किया है तो C, और इन्फ्लेमेटरी हो गया तो D। अब N1 और 2 में होता है AB और 3 में होता है ABC। तो N1 मतलब सिर्फ एक्सिलरी नोड्स में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर इप्सिलैटरल एक्सिलरी नोड्स में इन्वॉल्व हुआ है, अदर स्ट्रक्चर तक फिक्स है। इंट्राक्लाविकुलर नोड्स, इंटरनल मेमोरी नोड्स और एक्सिलरी साथ में, और अगर सुप्राक्लाविकुलर नोड्स विदाउट एक्सिलरी इंटरनल मेमोरी तो ये N3C हो गया। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में हमको देखना है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी में आता है एक पैटीज़ और एक ऑस्टिन क्लॉज। पैटीज़ में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और रिमूव करते हैं पेक्टोरालिस माइनर को, और उसके बाद में लेवल 1, 2, 3 नोड्स को भी रिमूव करते हैं। और इसमें हम डिवाइड नहीं करते, ऑस्टिन क्लॉज में रिट्रैक्ट करते हैं पेक्टोरालिस माइनर को सुपेरोमीडियली। लेवल 1, 2 को ही रिमूव करते, 3 को रिमूव नहीं करते, ठीक है। प्रिजर्व क्या करता है, एक्सिलरी वेसल्स प्रिजर्व करते हैं, सेफेलिक वेन, पेक्टोरालिस मेजर, नर्व टू लैटिसिमस डोर्सा, ये सब प्रिजर्व करते हैं। रेडिकल के एडवांटेज क्या रहता है, शोल्डर फंक्शन प्रिजर्व रहता है, पेक्टोरालिस मेजर प्रिजर्व करता है, इसके लिए एक अच्छा वैस्कुलर बेड रहता है स्किन फ्लैप के लिए। कॉस्मेटिकली एक्सिलरी फोल्ड प्रिजर्व रहता है। रेडिकल मास्टेक्टोमी, रेडिकल में क्या करते हैं हम लोग,
पेक्टोरिस मेजर माइनस सेरेटस एंटीरियर का पार्ट रिमूव करते हैं, 1 to 3 नोड्स रिमूव करते हैं और ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करते हैं. ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में क्वाड थेरेपी आती है. QU मतलब क्वाड्रेंटेक्टोमी इन्वॉल्व ब्रेस्ट क्वाड्रेंट का एक्सिलरी नोड डिसेक्शन और रेडियोथेरेपी. क्वाड्रेंटेक्टोमी एक्सिलरी नोड डिसेक्शन और रेडियोथेरेपी होता है. इसके अलावा हम लोग ट्रांसप्लांट में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ट्रैप, ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस मसल का फ्लैप. ठीक है. इसके बाद में उसके अलावा लेटिसिमस डॉर्साई का भी ग्लूटियल फ्लैप भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद में जब रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए यूज़ होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, सिलिकॉन एलर्जी वगैरह. कीमोथेरेपी सारे नोड पॉजिटिव कैंसर्स में करते हैं, जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उनमें भी करता है. और कीमोथेरेपी के रेजिमेंट में होता है CMF, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिथोट्रिक्सेट, 5-फ्लोरोयूरासिल. CMF रेजिमेंट इंपॉर्टेंट है. और CAF भी होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, एड्रामाइसिन और 5-फ्लोरोयूरासिल रेजिमेंट. हार्मोन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, अगर ER पॉजिटिव है ग्रेटर देन 10 है और ER नेगेटिव मतलब लेस देन 3 है, टैमोक्सिफेन देते हैं और SERM देते हैं. SERM में टैमोक्सिफेन. अब नेक्स्ट हम लोग थायराइड देखने वाले हैं. हेलो गाइस, तो अभी हमारा नेक्स्ट केस है थायराइड. थायराइड में केस कैसे प्रेजेंट करेंगे. गुड मॉर्निंग सर, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अ केस ऑफ अ 60-year-old फीमेल, कावाबाई चौहान, resident of Yavatmal, farmer by occupation, presented to surgery OPD on 15/6/24 with chief complaints of swelling in throat और neck basically since 10 years और pain in shoulders अभी वो नहीं है. My patient was apparently alright 10 years ago when she noticed swelling in her throat which was insidious in onset, gradual in progression. Initially 1.1 centimeter, gradually progressed to current size of 15 into 10 centimeter. The swelling is not associated with local pain. However, patient complains of shoulder pain. Patient gave history of increased irritability and heat intolerance and anxiety. Heat intolerance आ गया मतलब hyperthyroidism. फिर इसके बाद में no history of pressure symptoms, hoarseness of voice, dysphagia, dyspnea, no history of difficulty in breathing, breathlessness, cough, no history of trauma, no history of any other swellings in neck, lymphadenopathy, no history of bone pain, weight loss, loss of appetite, headache, seizures, dyspnea, jaundice, no comorbid conditions. Menstrual history, age at menarche 15 years, her cycles were regular and she achieved menopause 15 years ago. Obstetric history, married at 16 years, G6, P6, L6. Her first 2 child were female at the age of 14 years and last child was a female at the past history. Patient is not known case of diabetes mellitus, TB, hypertension, bronchial asthma, seizures. Patient went to nearby hospital 2 years ago where she was diagnosed as a case of thyroid, but she refused to take any treatment. No significant family history. Personal history, patient consumes mixed diet and packaged salt. There is no history of loss of appetite. Normal bowel bladder movements. No complaint of disturbed sleep due to tingling sensation in her feet, but complaints of disturbed sleep due to tingling sensation in her feet. No history of any addictions. Endemic consumption of tobacco, no. Summary, my patient is a 60-year-old female from Yavatmal, presented with chief complaints of swelling in her neck since 10 years and pain in shoulders, gradually increasing size to achieve current size with no features of compression, metastasis, hypothyroidism. General examination, my patient was well oriented to time, place and person, built moderately, nourishment adequate, vitals, temperature afebrile, pulse, BP, respiratory rate, pickle absent, pedal edema present in graves but it is absent. Head to toe examination, hair grey, face dull, eyes, skin normal, spine normal, limb normal. After taking proper consent from patient, she was exposed from head to mid chest
Examined under bright light inspection, a solitary swelling of size 15 into 10 centimeter oval shaped located in midline was seen, extending from thyroid cartilage to suprasternal with हाँ उसके बाद में with vertically and horizontally extending superiorly from thyroid notch to inferiorly suprasternal notch, and laterally it is anterior to sternocleidomastoid but posterior to sternocleidomastoid on left side. The lower border of the swelling is well made out at suprasternal notch. Carotid pulsation seen over the right side. Trachea cannot be seen. Lymph nodes, no visible swelling. The swelling is non-tender palpation में swelling present in front of neck which measures 18 to 5 centimeter in size. Surface bosselated. It is ovoid in shape with extent superiorly from thyroid notch inferiorly till the suprasternal notch, laterally on right side. Artery to sternocleidomastoid on left side, posterior to sternocleidomastoid.